Hi guys, I hope you all are doing great. So now we're going to do another question of section C for decision making techniques, which is Pelton Park Resort, question number 168. Again, this is your March June 2019 past paper question. Okay, so let's get started. Up this question is based upon your relevant costing. This question is based upon your relevant costing and your short term decision making techniques जो कि हमने पढ़ी थी हमारे चैप्टर 11 में. So let's get started. पहले again हम case study पढ़ेंगे and then we move forward to the question. So Belton Park Resort is a new theme park resort located in the country. In Beeline, the resort is made up of a theme park, a hotel and a indoor water park. हमारे पास theme park है, hotel है and indoor water park है. Resort opened 2 months ago and is already very popular. All the theme parks in Beeland are required by law to shut down in the colder month of January because of the risk of accidents. Pelton Park Resort must decide whether to shut down the whole resort or just the theme park. It could choose to keep open the hotel or the water park. Okay. अब या तो हम सिर्फ और सिर्फ थीम पार्क बंद कर दें या फिर हम सब कुछ बंद कर दें. ठीक है. Since Pelton Park Resort has not been open for long, there is a limited historical data available about cost and revenues. However, based upon last 2 months, the following average monthly data is available. Hotel के लिए number of rooms are 120. Average rate हमें given है. Occupancy is 90%. Out of 120, 90% rooms are occupied. Average night spend on extra पर रूम की इतना तो आपका रूम का रेट है, रूम का प्राइस है पर नाइट एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा स्पेंड. ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर एक्स्ट्रा. अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेंड किया उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 60% इज कॉन्ट्रीब्यूशन. वाटर पार्क के लिए नंबर ऑफ विजिटर्स 12,000. एडमिशन प्राइस पर विजिटर इज 21. एवरेज स्पेंड एक्स्ट्रा पर विजिटर ये 21 के ऊपर कितना स्पेंड करें एक्स्ट्रा? $12 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन दिस $12 इज 60%. Extra include getting anything purchased by customer not included in the room rate or admission price. Management estimates that for January the average room rate per night would need to decrease by 30% and the admission price for the water park by 20%. अब वो लोग क्या कह रहे हैं? For January the average room rate per night would need to decrease by 30% and the admission price of the water park by 20%. With such reductions, it is estimated that an occupancy rate of 50% would be achieved for the hotel, and the number of visitors to the water park would be 52% lower than the current levels. अब वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप अपने होटल का रूम का प्राइस 30% से कम कर दोगे तो आप अपने होटल की ऑक्यूपेंसी 50% मेंटेन कर पाओगे, और अगर आप अपने वाटर पार्क की एडमिशन प्राइस को 20% से कम कर दोगे तो आपके जो विजिटर्स हैं वो 52% से कम हो जाएंगे. ये जो विजिटर्स हैं ये 52% से कम हो जाएंगे, 52% लोअर देन द करंट लेवल्स. ठीक है. द एवरेज नाइटली स्पेंड ऑन एक्स्ट्राज पर रूम वुड बी 20 एंड द होटल वुड बी 12. सो ये हमारी सेम ही रह रही है, राइट. देन द रनिंग कॉस्ट ऑफ होटल, अब ये हमारी कॉस्ट है. फॉर ईच लास्ट 2 months आर एज फॉलो. स्टाफ कॉस्ट, मेंटेनेंस, पावर, सिक्योरिटी एंड वाटर. स्टाफ कॉस्ट पे आते हैं. स्टाफ कॉस्ट, परमानेंट स्टाफ इंक्लूडेड द स्टाफ कॉस्ट फॉर द होटल इज द सैलरी ऑफ 30,000. तो ये तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, पर एनम फॉर द एनुअल होटल मैनेजर एंड 24,000 पर एनम फॉर द हेड चीफ. ठीक है. तो 54,000 इज माई फिक्स कॉस्ट, राइट, because that is the annual salary for the permanent staff. वो तो irrespectively pay होगी. These are both permanent members of staff who are paid for the full year regardless of their working hours. ठीक है. The water park employs one permanent member of staff, the manager, on a salary of 24,000 who is also paid for the full year regardless of their working hours. ठीक है. तो अब ये हो गई फिक्स कॉस्ट, बाकी सब आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, राइट. मेंटेनेंस पे आते हैं. मेंटेनेंस में हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. लेट्स मेक अ नोट ऑफ इट वेरी क्विक. हमारे पास होटल एंड वाटर पार्क. ओके. सबसे पहले हमारे पास है स्टाफ कॉस्ट. टोटल है हमारे पास 120,000, ठीक है, एंड 75,600. इसमें से हम लिखेंगे हमारे पास फिक्स्ड है. फिक्स इज
होटल के लिए 54,000, 30,000 प्लस 24,000, वाटर पार्क के लिए सिर्फ 24,000, राइट, क्योंकि वहाँ पर भी हम एक परमानेंट स्टाफ एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है. टेम्प्रेरी स्टाफ, द रिमेनिंग स्टाफ कॉस्ट रिलेट टू द टेम्प्रेरी स्टाफ और ओनली पेड फॉर द आवर्स दे वर्क. तो यहाँ पर हम वेरिएबल निकालेंगे. वेरिएबल इज गोइंग टू बी दिस माइनस दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, राइट. ठीक है. नाउ if the hotel stays open in January, half of these staff members will continue to work for their current hours because their jobs are largely unaffected by the guest occupancy rate. अब अगर again if the hotel stays open in January, half of these staff members will continue to work their current hours because कुछ jobs हमारी occupancy rate से affected नहीं हैं. Okay, then हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. However, the other half of the staff will work proportionately less to reflect the 50% occupancy rate in January as opposed to 90% occupancy rate of the last 2 months. At the water park, the temporary staff working hours will fall according to the number of visitors, hence the fall would be expected for January. Okay. Revised variable cost. Okay. Revised variable cost for water park पे आते हैं. Water park की will be less by, it will fall by 52%. अगर 52% से कम हो रही है तो बचा हुआ कितना हुआ मेरा 48%, राइट. ये तो हो गई मेरी रिवाइज कॉस्ट ऑफ वाटर पार्क. अब आते हैं होटल पे. होटल में हाफ विल रिमेन सेम, ठीक है. तो इसका हाफ सेम ही रहेगा. बाकी का जो हाफ है इसका, बाकी का जो हाफ है दैट इज गोइंग टू शो दी फॉल इन दी ऑक्यूपेंसी रेट. तो यहाँ पर द रनिंग कॉस्ट ऑफ होटल एंड वाटर पार्क ऑफ ईच लास्ट 2 मंथ्स गिवन है हमें, ठीक है. ये लास्ट 2 मंथ्स का खर्चा है हमारा. ईच ऑफ द लास्ट 2 मंथ्स. स्टाफ की कॉस्ट गिवन है, वाटर पार्क की मेंटेनेंस, पावर, सिक्योरिटी. अब स्टाफ पे आते हैं. फर्स्ट नोट, परमानेंट स्टाफ इंक्लूडेड स्टाफ ऑफ होटल इज़ द सैलरी ऑफ 30,000 पर एनम. एंड अब स्टाफ में हमारे पास होटल में 2 स्टाफ हैं जो कि परमानेंट है, जिनकी सैलरी है 30,000 एंड 24,000 पर एनम. ये पर एनम की बात हो रही है. वी आर ओनली कंसर्न विद पर मंथ बिकॉज हम सिर्फ जनवरी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है. एंड दीज आर बोथ परमानेंट members of staff who are paid for the year regardless of their working hours. Next, water park employees, 1 permanent member of staff, the manager. water park के पास भी एक permanent member है, ठीक है, who is also paid for the full year regardless of the working hours. okay, तो ये हमें ये जो ऊपर कॉस्ट गिवन है ये 1 महीने का खर्चा है जो हमने लास्ट 2 महीने में किया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल लास्ट 2 महीने, लेट्स से नवंबर एंड दिसंबर में आप ओपन रहे हो, तो दिस इज़ द खर्चा. नवंबर में जो 1 महीने का खर्चा है, फिर दिसंबर के 1 महीने का खर्चा, कि स्टाफ की कॉस्ट 1 महीने की 120,000 है, ठीक है. तो ये 1 महीने का पर्टिकुलर खर्चा गिवन है हमारे पास. उसमें से ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं फॉर होटल, जिसकी एनुअल सैलरी, मंथली नहीं एनुअल सैलरी 30,000 है और 24,000. तो हमारे पास इसकी मंथली सैलरी क्या आनी चाहिए, 24,000 विल बी 2,000 एंड 30,000 की विल बी 2,500, राइट. ऐसे ही हमारे पास वाटर पार्क के एम्प्लॉय की भी मंथली सैलरी 2,000 आ गई. अब टेम्परेरी स्टाफ पे आते हैं. जैसे द रिमेनिंग स्टाफ कॉस्ट रिलेट टू एम्प्लॉयमेंट स्टाफ हु आर ओनली पेड फॉर द आवर्स दे वर्क. इफ द होटल स्टेज ओपन इन द जनवरी, हाफ ऑफ दी स्टाफ मेंबर्स विल कंटिन्यू टू वर्क देयर करंट आवर्स बिकॉज देयर जॉब्स आर लार्जली unaffected by great guest occupancy. तो 50%, अब बाकी का जो बच गया that is going to remain same, ठीक है. और बाकी का 50% will be affected by the occupancy, ठीक है. at the however the other half of the staff will proportionately less hours to reflect 50% occupancy rate in the January as opposed to 90%. At water park, temporary staff working hours will fall according to the number of visitors, hence a fall of 52% would be expected for January. Maintenance में, maintenance is undertaken by a local company, TechWorks, which builds Pelton Park Resort for all the work carried out each month. If the hotel and water park are closed, TechWorks will instead pay a
will be paid a flat fee of 4,000 for the hotel and 2,000 for the park. ठीक है, तो हमारी कॉस्ट ये जो है 14,600 और 6,000 से कम होके 4,000 एंड 2,000 हो जाएगी. पावर कट्स पे आते हैं. पावर कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी, बेल्टन पार्क रिजॉर्ट पेज अ फिक्स्ड मंथली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 8,000. ओके. For the hotel 7,000 for the park all year round. All right, so this is the fixed cost. बाकी का हमारा variable cost है, right? Then for gas, power cost includes electricity and gas. तो power हमारी electricity की fixed cost है 8,000 for the hotel and 7,000 for the water park. Gas पे आते हैं. The gas charge relate to the heating and include a fixed charge of 2,200 per month for the hotel and 1,500 for the water park. ठीक है. The remainder of the gas charges is based on usage and would be expected to increase by 50% in January because of the colder weather. तो मेरी gas की cost 50% से increase होगी. Now security cost, if the hotel and water park close, no charges will be made to the current arrangements for security while the premises are empty. अगर होटल एंड वाटर पार्क बंद हो जाएंगे तो हमें नो चार्जेस विल बी मेड फॉर द करंट अरेंजमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज प्रेमिसेस हमारे एम्प्टी है, तो सिक्योरिटी कॉस्ट सेम रहेगी. वाटर कॉस्ट, इफ इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वाटर कॉस्ट फॉर द होटल विल फॉल टू 6,450 for the month if it remains open in the January. However, the water cost for the water park could be expected to remain at their current levels. If the hotel and water park were closed, all water would be turned off, so no charges would arise अगर उसको बंद रखेंगे तो. Now the question says, requirement पे आते हैं. पहला part कह रहा है calculate the incremental cash flow, additional cash flow for the month of January if Belton Park Resorts decides to keep open. द होटल, अगर हम होटल ओपन रखेंगे तो हमारा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो क्या आना चाहिए. इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इंक्लूड्स योर कॉस्ट माइनस सेविंग्स. ओके, सो लेट्स सी. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम निकालेंगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फॉर द होटल. सबसे पहले आते हैं हम लोग कैश इनफ्लो पे. कैश इनफ्लो पे अब हमारे पास ओके, नंबर ऑफ रूम्स 120. ओके, days in January is 31. Total number of rooms would be 120 into 31. Okay, occupancy rate is 50% for the month of January. ठीक है, rooms occupied would be 50% of total rooms available. इतना क्लियर है. अब आते हैं रेट पर नाइट. अब उन्होंने बोला है कि हमारा रेट विल डिक्रीज बाय 30% इन जनवरी, राइट. सो 100 इंटू 70%, 30% से कम हो गया तो बचा हुआ 70%. 70% इज द रेट पर नाइट, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू रेवेन्यू. Total revenue would be number of rooms occupied multiplied with rate per night. Okay, ये हो गया हमारा total revenue. ये हो गया plus total revenue from hotel. Okay, then add contribution from extras. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स्ट्राज इज 20 रेवेन्यू है, उसका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो 12 इज कॉन्ट्रीब्यूशन. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 12 इंटू दिस इज पर रूम, राइट. यू वुड से कि हम रेवेन्यू क्यों नहीं ले रहे और कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली रेवेन्यू में से आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, जो आपको कैश इनफ्लो होगा वो तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ही होगा, राइट. सो दिस इज
total cash inflow. Okay, now ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू कॉस्ट पे आते हैं हम। अब हमारे पास यहाँ पे स्टाफ कॉस्ट है, एक एक करके लेंगे, ठीक है। स्टाफ कॉस्ट, ओके, स्टाफ कॉस्ट इज़ 120,000, ठीक है। 120,000 में से आपकी फिक्स्ड है 30,000 एनुअल एंड 24,000 एनुअल। अब ये 120,000 आपकी क्या है, मंथली एक्सपेंस है स्टाफ का, ठीक है। मंथली एक्सपेंसेस 120,000, ओके, लेस फिक्स्ड सैलरी। फिक्स्ड सैलरी हमारी किसकी जाती है, फॉर योर होटल मैनेजर। होटल मैनेजर के लिए हमारी जा रही है 30,000 पर एनम। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं, -30,000 डिवाइडेड बाय 12 एंड देन योर हेड शेफ। हेड शेफ की कितनी है हमारी, 24,000, ठीक है, माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 2। सो ये बच गई आपकी वेरिएबल एक्सपेंस और वेरिएबल सैलरी कॉस्ट। ये हो गई मेरी वेरिएबल सैलरी कॉस्ट। अब इस वेरिएबल सैलरी कॉस्ट में से वो लोग कह रहे हैं टेम्परेरी स्टाफ 50%, half of the staffs, they say that if the hotel stays open, half of the staff members will continue to work their current hours, so 50% of the cost will remain same, right? 50% of the variable staff cost आपकी रेलेवेंट, आप ये एडिशनल खर्चा इनकर करोगे, ठीक है। 50% ऑफ द वेरिएबल स्टाफ कॉस्ट इज़ रेलेवेंट, क्योंकि अगर होटल बंद रहेगा तो खर्चा नहीं होगा, लेकिन अगर होटल खोलेंगे तो ये 50% खर्चा सेम रहेगा ऑफ योर वेरिएबल सैलरी कॉस्ट, ठीक है। स्टाफ कॉस्ट, यहाँ पर हम वेरिएबल स्टाफ कॉस्ट लिखते हैं। बाकी का 50% इज गोइंग टू चेंज एज पर ऑक्यूपेंसी रेट, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर what you will do, you will take your remaining half of the staff cost 105500 into 50%, okay, divided it by 90 because पहले हमारी occupancy rate 90 थी, and then multiplied with 50 because अब हमारी occupancy rate 50 है, ठीक है। proportionate कर रहे हैं basically this, alright। ओके, तो ये हो गई हमारी स्टाफ की कॉस्ट। अब आते हैं मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस में फॉर दी होटल, ठीक है, होटल की मेंटेनेंस वी विल बी फ्लैट 4,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज स्टाफ कॉस्ट, ओके। अब आते हैं, क्योंकि फ़िक्स तो इरिस्पेक्टिवली, अब स्टाफ को एक बार दोबारा देखते हैं, फ़िक्स तो इरिस्पेक्टिवली आपकी इनकर होगी, चाहे आप बंद रखो चाहे आप खुला रखो, राइट। लेकिन वेरिएबल आपकी तब इनकर होगी जब आप अपना होटल खुला रखोगे, राइट। 50% सेम रहेगी, बाकी की 50% विल चेंज एज पर योर ऑक्यूपेंसी रेट। नाउ कमिंग ऑन टू मेंटेनेंस कॉस्ट। हम यहाँ ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऑन दी अदर हैंड यू कैन शो इट इन वर्किंग्स टू, ठीक है।
लेट्स डू इट नाउ. मेंटेनेंस कॉस्ट पे आते हैं. मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ 4,000 फ्लैट फी फॉर द होटल. But this 4,000 flat fee is if the hotels and water parks are closed. So maintenance is taken by local company TechWorks, which builds Belton Park Resort for all the work carried out each month. If the hotel and water park are closed, TechWorks will instead be paid a flat fee for the month of 4,000 for the hotels. Now, बंद रहेगा तो 4,000 पे करेंगे, खुला रहेगा तो सेम कॉस्ट आएगी. ठीक है. So maintenance cost is 14,600 for the hotel. If opened, okay, हम यहाँ पे लिखेंगे cost incurred would be 14,600 less cost saved. Okay, cost saved. हमने ये 4,000 का खर्चा होने से बचा लिया. इवन दो हम 14,600 इनकर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बंद होता तो ये 4,000 का खर्चा होता हमारा. सो दिस इज़ द मनी सेव्ड, राइट. सो एक्चुअल में हमारा जो नेट कॉस्ट आ रहा है एज पर रेलिवेंट कॉस्टिंग दैट वुड बी 10,600. कॉस्ट इनकर्ड इज़ 14,600 एंड अगर हम बंद होते तो हम 4,000 का खर्चा करते तो वो 4,000 हमने क्या कर लिए, सेव कर लिए. ठीक है. सो दैट इज़ योर मेंटेनेंस कॉस्ट. नाउ मूविंग ऑन टू योर पावर कॉस्ट पे आते हैं. पावर कॉस्ट में सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में दे से दैट पार्क रिजॉर्ट पेज अ फिक्स्ड मंथली चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 8,000 फॉर द होटल एंड 7,000 फॉर द वाटर पार्क. सो इसका मतलब चाहे आपका होटल बंद रहे चाहे आपका होटल खुला रहे, आपको एक फिक्स सम पे करना है. तो मेरे लिए कोई रेलेवेंट कॉस्ट तो नहीं है. ठीक है. इरिस्पेक्टिवली पे होगा ही होगा, रेलेवेंट एडिशनल खर्चा तो नहीं है ना फॉर कीपिंग योर होटल ओपन. नाउ कमिंग ऑन टू गैस फिक्स्ड. ओके, गैस में हमारे पास द गैस चार्ज रिलेट्स टू हीटिंग एंड इंक्लूड अ फिक्स चार्ज ऑफ 2,200. सो फिक्स चार्ज में तो हमारे पास जीरो रेलेवेंट कॉस्ट है बिकॉज इरिस्पेक्टिवली आपका होटल बंद रहे खुला रहे वो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, the remainder of the gas charges is based solely on the usage and would be expected to increase by 50%. अब आते हैं बाकी के कॉस्ट पे. गैस वेरिएबल. ओके, पहले तो हम वेरिएबल का खर्चा निकालते हैं. ठीक है. पावर कॉस्ट इंक्लूड्स योर बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. ठीक है. पावर कॉस्ट हमारी 20,000 है माइनस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 8,000 जो पे होगा ही होगा माइनस गैस का फिक्स खर्चा 2,200. ये बच गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गैस. अब कह रहे हैं कि ये होगी 50% से इंक्रीज, तो इसको हम कर देंगे 1.5 और 150%. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू next part, security cost. If the hotel and water park closed, no changes will be made to the current arrangements for security while the premises are empty. So security की जो हमारी कॉस्ट है दैट विल बी ज़ीरो. क्यों? बिकॉज इरिस्पेक्टिव चाहे आपका होटल बंद रहे चाहे आपका होटल खुला रहे सेम खर्चा आएगा सिक्योरिटी में. ठीक है. एंड कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं है. लास्ट वन दैट वी हैव इज वाटर कॉस्ट. अब वाटर में दे से दैट it is estimated that water cost for the hotel would fall to 6,450 for the month if it remains open in January. तो अभी मेरे वाटर का खर्चा 12,900 है. 12,900 से कम होकर 6,450 हो जाएगा. तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है 6,450 बिकॉज हम तो वही खर्चा इनकर करेंगे, राइट ना. सो योर रेलेवेंट कॉस्ट हियर विल बी 6,450. तो अब वाटर कॉस्ट में देखते हैं हमारा जो खर्चा हो रहा है वाटर कॉस्ट में दैट इज़ 12,900. ठीक है. जो एक्चुअल कॉस्ट इज़ नॉर्मल expense is 12,900. Okay, if it closes if opened in Jan, your kharcha will be 6,450, right? तो हमने यहाँ पे कितनी सेविंग्स की? 6,450 की.
सो द नॉर्मल एक्सपेंस फॉर वाटर वुड बी 6450 अगर आपकी जनवरी में वाटर पार्क होटल खुला रहता है, ठीक है। तो ये हम सिर्फ होटल की ले रहे हैं, वाटर पार्क का हमने कुछ भी नहीं किया अभी। तो ये सब आपकी कॉस्ट हो गई। लेट्स टेक अ टोटल ऑफ कॉस्ट। टोटल कैश इनफ्लो है मेरे पास, टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं हम लोग। दिस इज टोटल कैश इनफ्लो, लेट्स फाइंड द टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है रेलेवेंट कॉस्ट as 121,583. Okay, this is our total cash outflow, or we will say total cost. Okay, ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैसे निकालेंगे? इंक्रीमेंटल कैश फ्लो विल बी total cash inflow minus total cost. Mental cash flow is going to be cash inflow minus cost. This is your incremental cash flow. That is a whole question for 8.5 marks. अब सेम चीज़ हमें वाटर पार्क के लिए भी करनी है, इसी के पैरेलल करते हैं हम लोग, ठीक है। So this is, let's say this is for hotel. Okay, now let's do for water park. Okay, now let's come on to the A का second part, which is for water park. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। पहले देखना है कि वाटर पार्क का रेवेन्यू, वाटर पार्क का एडमिशन प्राइस विल फॉल बाय 20% एंड हमारी जो विजिटर्स हैं वो भी 52% से कम हो जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ विजिटर्स कितने होंगे, 12,000 से 50% से कम हो जाएंगे, तो बचे हुए 48% हो गए। ये हो गए मेरे नंबर ऑफ विजिटर्स, ठीक है। प्राइस पर विजिटर, प्राइस पर विजिटर भी 20% से कम हो जाएगा, जो बचा हुआ कितना हुआ, 80%। 80%, दिस इज प्राइस पर कस्टमर। ओके, देन वी गेट टू रेवेन्यू फ्रॉम विजिटर्स, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इनटू रेवेन्यू। ओके, फिर हम निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स्ट्रास। अगेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं हम यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर विजिटर, दैट इज हमारा एक्स्ट्रा स्पेंड सेम ही रहेगा 12 एंड उसका 60% हमारा कंट्रीब्यूशन है। 7.2. Now we move forward to the total contribution from extras, that is 7.2 into number of visitors. तो ये मेरे पास आ गया टोटल इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। फिर से कॉपी करेंगे, टोटल कैश इनफ्लो इज दिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कॉस्ट पे। अब कॉस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी फ्रॉम हियर बिकॉज हमारे पास सेम ही खर्चा है, but the treatment is different, right? Let's see. स्टाफ कॉस्ट पे आते हैं। स्टाफ कॉस्ट हमारे पास मंथली खर्चा मेरे पास है 50,75,600, ठीक है। उसमें से फिक्स सैलरी जा रही है आपकी मैनेजर की, राइट। आपके मैनेजर की फिक्स सैलरी जा रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिक्स सैलरी ऑफ मैनेजर, दैट इज 24,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये आपकी वेरिएबल स्टाफ कॉस्ट हो गई।
अब वेरिएबल स्टाफ कॉस्ट में से हमने क्या पढ़ा था, एट वाटर पार्क द टेम्परेरी स्टाफ वर्किंग आवर्स विल फॉल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ विजिटर्स, सो योर रेलिवेंट स्टाफ कॉस्ट वुड बी, again relevant staff cost would be, ये जो आपकी वेरिएबल स्टाफ कॉस्ट बची ये हमारी 52% से कम हो जाएगी, तो बचा हुआ अगेन 48% हो गया, ठीक है। दिस इज योर रेलिवेंट स्टाफ कॉस्ट। मेंटेनेंस पे आते हैं। अगर आप बंद रखोगे तो आपको 2000 की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन खुला रखोगे तो ये 2000 की कॉस्ट हम सेव कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपकी कॉस्ट जो मेंटेनेंस पे इनकर हो रही है दैट इज 6000, ओके। एंड इफ़ यू डू नॉट क्लोज इट डाउन यू विल सेव 2000, तो नेट जो आपकी मेंटेनेंस की रेलिवेंट कॉस्ट होगी दैट विल बी 4000, बिकॉज 6000 हम इनकम कर रहे हैं, 2000 हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। पावर पे आते हैं। पावर में इलेक्ट्रिसिटी आपकी वही फिक्स है, इर्रिस्पेक्टिव पे करनी पड़ेगी। गैस हमारी 1500 फिक्स्ड है फॉर दी वाटर पार्क, तो वो भी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट ज़ीरो हो गई, बिकॉज इर्रिस्पेक्टिवली वो इनकर होगी। द रिमाइंडर ऑफ द गैस charges is solely based on the usage and would increase by 50% in the January because of the cold weather। अब हम यहाँ पे गैस का वेरिएबल एलिमेंट देखते हैं। देखो आपके पास गैस की जो पावर की जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 18000 यहाँ पे, राइट। पावर की जो टोटल कॉस्ट है मेरे पास दैट इज़ 18000, राइट। 18000 में से 7000 आपके 18000 में से 7000 आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फ़िक्स्ड है एंड 1500 आपकी गैस की फ़िक्स्ड है, ठीक है। ये मेरे पास बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट आ गया गैस के लिए। अब 50% से इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका हम 150% ले रहे हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में कोई चेंज नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव बंद रहे या खुला रहे हमारा वाटर पार्क, हमारी कॉस्ट इनकर होगी। एंड लास्टली वाटर कॉस्ट, हमने होटल के लिए बोला था इट विल फॉल टू 6450। However, the water cost for the month for the water park would be expected to remain at their current level if the hotel and park were closed। तो हमारी कुछ भी वाटर कॉस्ट नहीं होती। तो अगर बंद कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगी, लेकिन अगर खुला रखेंगे तो हमको कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी वाटर पार्क के लिए, 12100। दिस इज़ योर रेलेवेंट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालना है। Incremental cash flow is your again total cash inflow minus total cost। All right, that is it for the A part। B part पे आते हैं। They say discuss any other factors which Pelton Park शुड कंसिडर वन मेकिंग द डिसीजंस इन पार्ट ए, कि उनको बंद रखना चाहिए या खुला रखना चाहिए। अब देखो दोनों में खुला रखने के लिए मेरे पास इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज हैं, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, तो इट इज़ बेनिफिशियल कि हम उसको खुला रखें बिकॉज वी आर अर्निंग समथिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, आपने रेलिवेंट कॉस्टिंग तो देख लिया, अब इसके साथ साथ और क्या फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए व्हेन वी आर मेकिंग द डिसीजन कि हमें होटल एंड वाटर पार्क खुला रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो मूविंग टूवर्ड्स दी बी क्वेश्चन। बी पार्ट में इस क्वेश्चन के हमें बताना है कि और क्या फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। बट इन द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में हमारा कंक्लूजन है कि वी शुड कीप बोथ होटल एंड वाटर पार्क ओपन बिकॉज दोनों में हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लो है, ठीक है। अब आते हैं बी पार्ट में। सी पहली चीज़, दिस इज़ अ फेयरली न्यू बिजनेस, राइट, इट्स बीन ओपन फॉर जस्ट 2 months। Okay, so the average estimate for the cost and the average estimate for the price is something fairly based upon the very recent or very last 2 months, right? तो उसके बेसिस पर हम लोग नहीं कह सकते कि अगले महीने में जनवरी में आपकी एक्चुअल में कितने प्राइस आप उनसे चार्ज करोगे, या फिर अभी ऑक्यूपेंसी रेट हमें 50% गिवन है, तो हमें ये भी नहीं पता कि वो ऑक्यूपेंसी रेट किस एस्टिमेट पे इन्होंने डिसाइड किया, कि वो निकाला कैसे है, राइट। मे बी आपकी ऑक्यूपेंसी 50% से कम हो, मे बी ज़्यादा हो, मे बी आपको कम प्राइस चार्ज करना पड़े, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड अपॉन एस्टिमेट एंड वी डू नॉट नो कि ये एस्टिमेट किस बेसिस पर बनाए गए हैं। सेकेंड चीज़, हम ये भी कह सकते हैं दैट एज दिस इज़ अ फेयरली न्यू बिजनेस एंड दे आर स्टिल बिल्डिंग द कस्टमर बेस एंड दे आर स्टिल ओपन, दे हैव जस्ट ओपन टू द कस्टमर्स, सो दे शुड बी ओपन
ठीक है. Even if your cash flows of opening hotel and water park is not positive, they should still be open, because customers अगर repeat दोबारा आ रहे हैं, repeat sales के लिए, repeat purchases के लिए आ रहे हैं आपके पास, repeat visit के लिए आ रहे हैं, so it would be a positive thing for them. ठीक है. If any customer is stuck, another thing, if any customer is stuck in the winter and your place is open, your hotel is open, it would leave a positive impression that even in the cold weather you were open and they were able to stay here, and you could charge a higher price in that scenario also. If all the other hotels are open, all the other hotels are closed, so you could also charge high prices in terms of situations जहाँ पर people need the rooms, right? सो ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं. सो लेट्स सी 5 मार्क्स एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स तो हम लिखेंगे यहाँ पे. एंड दिस है डिस्कस. तो डिस्कस यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स एंड नेगेटिव फैक्टर्स, पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट बोथ. पहला पॉइंट हम लिखेंगे दैट द कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू is based on last 2 months calculations, right? So there is no surety or you can say that the calculations and the cost of average is based upon last 2 months, or you can say opening 2 months calculation, therefore they might not be accurate for the month of January. Next, the occupancy rate and the reduced prices are based on estimates. Okay, there is no information mentioned as on what basis they are estimated. The actual result might be very different from the estimates, as Belton Park is fairly a very new business. Okay, एक तो ये हो गया. ठीक है. All right, next is even if, but, or you can say but, or on the other hand, even if incremental cash flows are not as positive as calculated in part A, Belton Park should still open their hotel and water park. Why? Because, you can say this is because they are fairly new and still building their customer base. So here we've got 3 points. Okay, first one, second one,
third one. Okay, fourth one, we are going to write that in this case study, okay, or we can say that Belton Park has not considered the interdependency of demand between hotel and water park. Even though, as per the financial results, we should keep both of them open. Okay, but if only one of them would be open, it might impact the number of visitors and guests. It might impact the number of guests and visitors. Okay, because visitors might, or you can say because some percentage of visitors might be booking hotel rooms because they came to visit the water park. Now that is it for a 5 marker. You could write many other points here. ठीक है, many other points में हम क्या लिख सकते हैं? You can talk about कि हमारे हमने बोल दिया कि estimate पे based है हमारी occupancy rate and हमारी decrease in the revenue. ठीक है, then you can also talk about that the contribution for extras is also based upon last 2 or opening 2 months data, right? So that might not be 100% accurate, or that might increase or decrease in the actual result because हमें नहीं पता, because हमारे पास इतना डेटा ही नहीं है कि हम उससे पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकें. So how you will be able to make the actual how you'll be able to make an estimate कि आगे क्या हो सकता है, right? ऑन दी अदर हैंड यू कैन ऑल्सो से दैट कि अगर हम होटल या वाटर पार्क बंद कर देते हैं तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है स्टाफ, जो हमारी टेम्परेरी लेबर है, टेम्परेरी स्टाफ है, दे माइट लीव द होटल ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, एंड दे माइट फाइंड जॉब समवेयर एल्स एंड यू विल नॉट गेट देम बैक इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी बिकॉज दे आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर एल्स, राइट? नाउ अगेन देर इज़ अ एस्टिमेट कि गैस की कॉस्ट 50% से बढ़ जाएगी, बट इट कुड बी मच मोर देन दैट टू, राइट? तो अगेन अगर हम अपना रेवेन्यू एंड कॉस्ट को प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं कर सकते, सो वी शुड not just base the decision on your financial calculations, we should base on other factors too, right? That is it for this question. So I will see you in the next lecture. Till then, bye bye.